We had done a few examples in the last class, and we'll continue with where we stopped in the last class. So, the question says a block of mass m is placed on an inclined plane, which is moving with a constant velocity v in horizontal direction. So this inclined plane is moving with a constant velocity. So this is moving with a constant velocity v in horizontal direction. Now block is at rest with respect to the inclined plane. So block is at rest. That means, when you are moving this wedge towards right, there will be a force, the component of weight which will be acting down the incline, which is mg sine theta. The component of weight which is perpendicular to the incline is mg cos theta. Then you have a normal force N, and the friction force will be in upward direction, which will oppose this force mg sine theta. So friction force F is acting in upward direction. The value of F is basically mu into N. And since the block is at rest with respect to the inclined plane, the friction force F is equal to mg sin theta. तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है इस पे mg sin theta, उतना ही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, which is equal to F. So F is equal to mg sin theta. Right. So the friction force is equal to mg sin theta. So now, this is the first equation. We have to find the work done by friction, okay, in time t. So you have to find the displacement. Displacement is in this direction, s. Or displacement क्या होगा? Displacement is equal to speed into time, because this wedge is moving with uniform speed. So this block will also move along with the wedge, है ना? ये जो inclined plane इधर move कर रहा है speed v से, तो speed into time distance हो जाएगा, distance is equal to speed into time. So ये जो distance, मतलब जो displacement निकला है इस direction में और friction force इस direction में, इन दोनों के बीच में जो angle है, see this is theta, so that means this angle is also theta, so this angle will be equal to 180 minus theta. So you can draw it separately here to understand. So we have this displacement in this direction, friction force F in this direction, and the angle between them is 180 minus theta, right? So work done by friction, first part में work done by friction निकालना है. So this is frictional force F into displacement into cos of 180 minus theta. Cos 180 minus theta minus cos theta होता है, second quadrant में cos negative होता है. So this is minus of friction force F into displacement. Friction force is mg sin theta, so minus mg sin theta into displacement S is equal to Vt. So this will be minus of mg sin theta into Vt, right? So this is the value of work done by friction, minus mg Vt. अच्छा सॉरी, cos 180 minus theta minus cos theta होता है ना, एक cos theta का भी component. So in trigonometry we know that cos of 180 minus theta is minus cos theta. So that's why cos 180 minus theta is written as cos theta and a negative sign
in front of that. Then we have to find work done by, एक तो पहला friction, second work done by normal force, right? So work done by normal force. अब नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर, राइट? इनके बीच में जो एंगल होगा, अगर आप देखो, so, ये एक ब्लॉक है, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस इधर हो रहा है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा. सो जो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स होगा, n इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. सो n जो नॉर्मल है हमारा mg cos थीटा के बराबर. सो द नॉर्मल रिएक्शन, ये जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, ये दिस इज इक्वल टू mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, विच इज mg cos theta. n is equal to mg cos theta, डिस्प्लेसमेंट cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया. तो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, mg cos थीटा इंटू s के जगह vt कर लेंगे. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू sin थीटा. ठीक है, तो ये वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स है, और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है. ठीक है, अब लास्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग को निकालना है. देखो, ग्रेविटी mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपस में ये क्या है, परपेंडिकुलर है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, ग्रेविटी फोर्स mg है और डिस्प्लेसमेंट s, और यहाँ पे cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? ओम और जयशंकर, सॉरी मैंने देर मैसेज किया, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने मैसेज नहीं भेजा है क्लास का. तो मेरे ख्याल से तुम लोग को देखने में टाइम लग गया होगा, है ना? ओम, सुन पा रहे हो मुझे? So has everyone understood this question? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? Let's move to the next question now. Now work done by friction may be positive, negative और zero, है ना? तो हम लोगों ने देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स, अभी तो हम लोगों ने ये देखा था पिछली क्लास में कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट अब हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है. व्हेन अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स F on a rough plane and the block does not move, the work done by friction is zero. भाई जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा. सो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से जो वर्क डन जीरो कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट? सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज जीरो work done due to friction is zero when displacement is equal to zero.
that is static friction is acting, है ना? तो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल है, जितना फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा, और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। सेकेंड है व्हेन अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ ऑन अ स्टेशनरी सरफेस, ठीक है? तो ये जो ब्लॉक है, दिस इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, right, on a stationary surface, the work done by kinetic friction is negative. तो work done by kinetic friction will be negative। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो when work done, when the object is moving, है ना, when the block is pulled by a force F and the block is moving, okay, so when the block is moving, so in that case, work done by friction will be negative, kinetic friction. Okay. So work done by the kinetic friction is negative. Third is when a block A is placed on the block B, right? So let's say block A is placed on block B and we are applying a force F on block A. So A वाले block पे friction पीछे की तरफ लगेगा और B block पे friction आगे की तरफ लगेगा। अब बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी ब्लॉक का, दैट इनटू फ्रिक्शन, दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव वर्क डन। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज पॉजिटिव, ठीक है? व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ब्लॉक बी। तो इस सिनेरियो में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है फ्रिक्शन से, यहाँ वर्क डन नेगेटिव है और यहाँ पे वर्क डन जीरो है। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आपको? So let's go to the next one now. Yeah. Work done by static friction on an object may be positive, negative as well as zero. So work done by static friction on an object may be positive, negative as well as zero. Total work performed by static friction on the system is always zero. Static friction क्योंकि यहाँ पे movement नहीं होगा तो total work done performed, total work performed will always be zero. Work done by kinetic friction on an object may be positive, negative or zero. Negative network, so net work performed by kinetic friction on the system is always negative and it depends on relative displacement between the contact surfaces. तो जो kinetic friction के वजह से नेट वर्क जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका वैल्यू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, इस पे डिपेंड करेगा। Now if you see this problem, a force F is equal to 0.5 Newton is applied on lower block. इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 0.5 Newton, right? Applied on a lower block as shown. The work done by the lower block on upper block for displacement of 3 meter of the upper block with respect to ground is, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 3 मीटर है अपर ब्लॉक का। अब तुम ये देखो कि ये जो अपर ब्लॉक है, ये जो पहले तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं तो लोअर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा और अपर ब्लॉक पे वही फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ठीक है? सो अगर इनको साथ मूव करना है ना, ये आगे कब मूव करेगा? जब ये साथ में मूव कर रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन है, राइट? तो म्यू इंटू एन जो हमारा है वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0.1, ठीक है, इस सरफेस पे 0.1 इंटू एम जी, 0.1 इंटू एम जी, 0.11 इंटू 10, 1 न्यूटन हो गया।
बट तुम अप्लाइड फोर्स बस 0.5 न्यूटन लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही होगा जितना अप्लाइड फोर्स है। फ्रिक्शन जो है कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा तो होता नहीं, राइट। तो मतलब अगर हम फोर्स इस पे एफ लगा रहे हैं तो इस पे पीछे के तरफ उसी उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि ये है, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन तो रिएक्शन फोर्स है। तो ये मैक्सिमम फोर्स 0.5 न्यूटन ही लग रहा है। तो जो टोटल जो एक्सेलरेशन है इस पूरे ब्लॉक का, सो बोथ ब्लॉक्स move together and acceleration is equal to total force F by total mass m1 plus m2। सो हमारा एक्सेलरेशन टोटल फोर्स F जो लगा रहे हैं 0.5 न्यूटन, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 kg 0.5 by 3 और 1 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो जो फ्रिक्शन फोर्स F है दैट इज इक्वल टू मास m1 इंटू, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सो m1 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो 1 इंटू 1/6, 1/6 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क डन बाय लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक पे फोर्स क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय लोअर ब्लॉक on upper block is equal to force 1/6, displacement 3 meter, so 1/6 into 3, so 1/2, that is 0.5 meter. So work done by lower block on upper block is equal to 0.5 joules, I'm sorry. So second option. Is it clear to everyone? समझ आया आप लोग को? Yes, sir. ना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तब हम लोग क्या है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स विल बी कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सो वी फाइंड आउट द स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स F एक्टिंग फॉर अ डिस्प्लेसमेंट dx, सो दैट विल बी F डॉट dx, और उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लगा लेते हैं। So consider a particle moving from a point P1, that is x1 comma. So let's say a particle is here with its coordinate x1 y1 z1 to point P2, और इसको हम लोग मूव करा के यहाँ पे पॉइंट पे ला रहे हैं P2 पे, that is x2 comma, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 comma y2 comma z2 along path shown in the figure, while a force F act on it. Position vector of some point px y z on the path is given as, कोई बीच में एक पॉइंट है p, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x y z हो गया, राइट ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर देखेंगे r, ये पोजीशन वेक्टर r इज, राइट, r is given as xi plus yi plus zk, ये r वेक्टर हो गया। वर्क डन बाय f will be equal to dw is f dot dr, so f dot dr total work done is f dot dr, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r1 से लेके r2 तक। थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड dr, मान लो यहाँ पे जो dr है और f है इनके बीच में एंगल थीटा है, वर्क डन इज f dr cos थीटा r1 to r2, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। अब अगर हम लोग को यहीं पे f का वैल्यू fxi प्लस fyj प्लस fz के दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, डिस्प्लेसमेंट r इज xi प्लस yj प्लस zk, dr क्या हो जाएगा dxi dyj dzk, f डॉट dr, सो fx i fyj fz के डॉट ऑफ dxi dyj dz के, इससे हम लोग को आ जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz,
और इंटीग्रेशन कहाँ से x1 कॉमा y1 z1 से x2 y2 z2 तक। सो इसको अलग अलग हम लोग लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स x1 to x2, एफ वाई डी वाई एफ y1 to y2, एफ जेड डी जेड z1 to z2. If particles is restricted to move along one of the axes, say along x-axis, then W12, when the particle is moved from position x1 to x2, so W12 is equal to fx dx x1 to x2. Above relation will be true even if fy and fz are present. ठीक है, तो ये जो above relation है, this will be true even if fy and fz are present when particles move along x-axis. Now let us do an example to understand the concept. 12th example कह रहा है particle moves from a point P to point Q, है ना, while force F is given like this, acts on it, find the work done by the force. तो अभी पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट PQ जो है, राइट, सो हम लोगों को वैल्यू दे रखा है पहले तो वर्क डन फ्रॉम P to Q is equal to fx dx x1 to x2 fy dy y1 to y2 fz dz z1 to z2. So this is equal to एक सेकेंड बोल, ठीक है। सो ये अब जो वैल्यूज हैं, है ना, ये देखो x1 to x2, ये जो P से Q जा रहा है 2 से 1 हो गया, ठीक है, fx dx है हमारा, ये x dx I, और इसका इंटीग्रेशन जो है 2 से लेके 1 तक है, प्लस एफ वाई डी वाई वाई स्क्वायर डी वाई जे, और इसका जो इंटीग्रेशन है ये 3 से लेके 2 तक है, प्लस ऑफ एफ जेड डी जेड मतलब जेड स्क्वायर डी जेड, और ये जो वैल्यू है 2 मीटर 3 मीटर और ये 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 से लेके -1 तक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 1 I cap plus of y cube by 3 to 2 j cap z cube by 3 1 to -1 k cap. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे,
So this is equal to x square by 2, upper limit minus lower limit, 1 square minus 2 square by 2i, यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब बाय 3j माइनस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3k. So 1 minus 4 is minus 3 by 2i plus 8 minus 27 is minus 19 by 3j plus minus 1 minus 1 minus 2 by 3k. So minus 3 by 2i minus 19 by 3j. Right. और ये आई एम सॉरी, ये जो एफ एक्स डी एक्स करेंगे यहाँ पे आई जे के तो हट गया ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आई जे के रिमूव हो जाता है. इसको सबको हम लोगों को ऐड कर देना होगा. सो दिस इज माइनस 3 बाई 2 माइनस 19 बाई 3 माइनस 2 बाई 3. एलसीएम हम लोग का 6 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस 9 माइनस 38, ठीक है, और माइनस 6. सो 30 44 और 9 53 हो गया. So this is equal to minus 53 by 6. This is the value of the work done. Clear बच्चों? Let's go to the next one. ये खुद से करके देखो, सिमिलर वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोग कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है तुम्हें x के टर्म्स में, और x चेंज कर रहा है 0 से 5 तक. तो ये इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालना है. निकाल के बताइए क्या आंसर आ रहा है 13th वाले का. देखो इसमें क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन. एफ इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट ऑफ डी एक्स, और इंटीग्रल इसका x इज इक्वल टू 0 टू 5 होता है. सॉल्व कर लेंगे. 7dx मतलब 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3
लिमिट 0 से 5 डाल देंगे, 7x और 2x स्क्वायर बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये 3x स्क्वायर बाई 3x क्यूब बाई 3 कैंसिल हो गया, 7x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब, लिमिट 0 to 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 7 into 5 minus 5 square plus 5 cube माइनस लोअर लिमिट इज माइनस 0 हो गया, 35 minus 25 plus 125, so this is 135 joules. So this is 135. क्लियर है बच्चों? आगे समझ सबको? यस सर। अब हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स करेंगे. So if x is the displacement of the free end of the spring from its equilibrium position, then spring force is given by F is equal to minus kx. ये restoring force होता है. अगर हमारा यहाँ पे एक मास m है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, और इस स्प्रिंग को हम लोगों ने x डिस्टेंस से स्ट्रेच कर दिया यहाँ पे, है ना? तो ये जब हम लोगों ने स्ट्रेच किया इसको प्लस x डिस्टेंस से, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं उससे इसका यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स. माइनस इसीलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है. उसी तरह जब हम लोग कंप्रेस करते हैं इसको एक्स डिस्टेंस से, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन. तो x यहाँ नेगेटिव है तो फोर्स जो है पॉजिटिव हो गया. सो लेट द स्प्रिंग बी स्ट्रेच्ड फ्रॉम x to x plus dx, right, through the distance dx. वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. देखो अगर मान लो स्प्रिंग को तुमने dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऑन स्प्रिंग इंटू dx, तो फोर्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. माइनस के एक्स डी एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है. Now work done by spring as it is stretched through a distance x from its mean position is given by 0 to x dw, integrate कर दो तो माइनस के एक्स डी एक्स 0 to x, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है. ठीक है. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? इसी में पॉजिटिव हो जाएगा. स्प्रिंग की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन विल बी प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर. सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ. यहाँ पे देखो मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई से एक्स एफ तक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. So work done by the spring force depends only on initial and final points. Net work done by spring force is 0 for any path that returns to the initial position. And figure below shows graph between spring force and displacement, fx graph. Work done is given by area under force. जो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है उसके जो एरिया के अंदर जो उसका जो ग्राफ के अंदर का एरिया है दैट विल गिव यू द वर्क डन. तो ये हमारा है ना वर्क, ये ग्राफ है, इसमें जो एरिया निकालेंगे तो उससे हम लोगों को ये एरिया हमें वर्क डन देगा. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. अभी हम लोगों ने वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाला. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग
हम लोगों ने निकाला इज -12 kx स्क्वायर, नेगेटिव साइन। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तुम एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाओगे जितना स्प्रिंग फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में, Fx इज इक्वल टू kx हो गया, राइट। वर्क डन kx dx को इंटीग्रेट कर दो तो हाफ kx स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ kx स्क्वायर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ हाफ kx स्क्वायर। तो एक्सटर्नल फोर्स हाफ kx स्क्वायर पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग। So work done in stretching the spring from xi to xf will be half k xf square minus xi square, जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन अगर हम लोग को निकालना होगा तो वर्क डन इज दिस एरिया फ्रॉम xi to xf। नाउ वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो अगर हमें एरिया अंडर द fx ग्राफ एंड x एक्सिस गिव्स यू द वर्क डन, है ना। fx ग्राफ ये बना हुआ है और x एक्सिस के बीच, मान लो हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया xi से xf तक, तो वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ, वर्क डन क्या आएगा, ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा वर्क डन, right? So area under fx graph and x-axis is equal to work done. Figure below shows a plot of one-dimensional variable force acting on a particle moving along x-axis. We wish to find work done on the particle by this force as the particle moves from an initial position xi to final position xf. xi to final position xf. As shown in the figure, let us divide the total displacement of the particle into number of intervals of width delta. तो कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट का जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। Now we choose delta x small, delta x को small choose करेंगे enough to permit us to take the force fx as being reasonably constant over the interval. तो हम लोग डेल्टा एक्स को इतना छोटा लेंगे कि जो फोर्स है इस पूरे रीजन में, हम लोग हर जो रेक्टेंगुलर रीजन में फोर्स को हम लोग कांस्टेंट ले सके, इतना छोटा हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू लेते हैं। So we choose delta x small enough to permit us to take the work fx as being reasonably small over that interval. We let fjx be the average value of fx within the jth interval. Area of jth strip हम लोग को निकालना है ना, तो area of jth strip will be equal to, मान लो jth strip है, ये jth strip है, तो area of this jth strip, right? So area of this jth strip is force fjx. So this is the force, यहाँ से जो भी निकल के आएगा, so fjx and उसके बाद डेल्टा एक्स, ये जो इसका विड्थ है दैट इज डेल्टा एक्स। fjx into delta x assuming rectangular strip is the area delta aj. Now fjx is the height of the jth strip and delta x is its width. We add areas of the strip between xi and xf in the figure. तो एरिया ऑफ स्ट्रिप को ऐड करना है, fjx डेल्टा x समेशन साइन के अंदर ऐड करेंगे। इक्वेशन 2 is an approximation because strips are not rectangular. We can make the approximation better by reducing the strip width delta x and using more strip as in figure below. Now in the limit, we let the strip width approach 0. The number of strip then becomes infinitely large and we have an exact result as shown in the figure below. So area under fx graph and x-axis
इज इक्वल टू, ये जो एफ एक्स ग्राफ है, इस एफ एक्स ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, this area gives you the work done. From definition of integral, summation of fjx delta x, limit delta x tends to 0, इसको हम लोग इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर सकते हैं. So fx dx xi to xf. Now area under fx graph and x-axis is a is equal to integration xi to xf fx dx. ये हमारा एरिया हो गया, तो यही हमारा वर्क डन भी हो जाएगा. But fx dx x1 to xi to xf is the work done. So area under fx graph and x-axis is equal to work done. Area above x-axis is positive and area below x-axis is taken as negative. ठीक है, तो ये है तरीका जब हम लोग को वर्क डन निकालना होता है ग्राफ के को यूज करके, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे. यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल 14 में, a horizontal force F is used to pull a box placed on floor. ठीक है, हम लोग F फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं ब्लॉक को फ्लोर पे. वेरिएशन इन द फोर्स विथ पोजीशन कोऑर्डिनेट x measured along the floor is shown in the figure. तो ये this is the variation of force, right? Now calculate the work done by the force in moving the box from x is equal to 0 to x is equal to 10 meter. So work done from x is equal to 0 to x is equal to 10 meter. 0 to 10 is equal to area under this trapezium, half into sum of parallel sides, 5 plus 10 into height 10. So 15 or 10 by 2, 5. 15 into 5 is 75 joules. ठीक है, so ये first part हो गया, work done by this force. Now second part, work done by the force in moving the box from x 10 to 15. So work done from 10 to 15 is minus half. ठीक है, नेगेटिव इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एरिया इसका निकालना होगा, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, सो दिस इज जो 10 to 15 मीटर में इसका एरिया निकालना है. सो हाफ इंटू 5 इंटू, ये भी ना यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ना ये 10 होना चाहिए. हाफ इंटू 5 इंटू, मतलब ये -10 है. ठीक है, सो दिस इज 25 joules. और बिकॉज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है हम लोगों ने. थर्ड पार्ट है वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम 0 to 15. सो वर्क डन फ्रॉम 0 to 15, दैट इज इन दोनों का सम प्लस 75 जूल माइनस 25 जूल, तो प्लस 15. क्लियर बच्चों? समझ आ गया आप लोग को? Yes, sir. अब हम लोग एनर्जी करेंगे.
सो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क. किसी भी बॉडी में कितना कैपेसिटी है कोई भी वर्क करने के लिए, दैट इज नोन एज एनर्जी. सो जो एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम वर्क, राइट, सम यूजफुल वर्क. So various forms of energy is, first is mechanical energy. So there are two types of mechanical energy. One is kinetic energy and other is potential energy. Then we have chemical energy, electrical energy, magnetic energy, nuclear energy, sound energy, light energy, and heat energy. So these are all chapters only which we will be studying one by one. So अभी इस chapter में हम लोग generally mechanical energy, that is kinetic और potential energy के बारे में बात करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टेक्स प्लेस इन वेरियस फिनोमिना. So energy conversion from one form to another takes place in various phenomena. For example, an electric heater converts electrical energy into heat energy. जो हमारा electric heater है, right? So an electric heater, this heater converts electrical energy into heat energy, and a bulb converts electrical energy into light energy, right? Now, according to principle of conservation of energy, if we ignore mass energy conversions, so principle of conservation of energy करें, if we ignore mass energy conversions, energy may be transformed from one form to another, but it cannot be created or destroyed. So energy conservation क्या कहता है? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. It can be any of these forms, right? Now, alternate statements energy conservation का क्या है? In transforming energy from one form to another in an isolated system, energy is always conserved. Energy can neither be created nor destroyed, or last total sum of all the energy in the universe remains constant. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे मास एनर्जी कन्वर्जन्स को नहीं ले रहे हैं पिक्चर में. Now, certain important points. Energy is a scalar quantity. जैसे work done scalar quantity है, energy भी scalar quantity है, क्योंकि work done को ही हम लोग energy जो conserved रहेगा, energy जो stored रहेगा, that is converted into work. So since work is a scalar quantity, energy will also be a scalar quantity. Dimension of energy is given by is ml square t minus 2. So basically force का होता है ml t minus 2, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा. डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क और टॉर्क. ठीक है. सो जो एनर्जी का डायमेंशन है दैट इज सेम एज वर्क और टॉर्क, दो उसका डायमेंशन सेम होता है. यूनिट्स ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, राइट. तो जूल SI यूनिट है, CGS यूनिट जो है एनर्जी का अर्ग हो जाएगा. ये रिलेशन हम लोग पिछली क्लास में भी देखे थे, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ठीक है. सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अलग अलग यूनिट्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट आवर है और कैलोरी है. सो ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं एनर्जी के. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. 1 किलोवाट आवर को अगर जूल्स में करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे तो 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, या फिर जूल्स में करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स के बराबर होता है. ये सारे कन्वर्जन्स याद रखने हैं. एक मिनट बच्चों. ठीक है.
नाउ मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शो दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट, and vice versa. According to this theory, mass of matter itself is a form of energy, right? So delta m, that is mass converted to energy E. So according to Einstein's mass energy equivalence relation, E is equal to delta m into c square. Delta m क्या है? वो मास जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी, 12th क्लास का सिलेबस जब कर रहे होंगे, है ना, तो वहां पे जो लॉस, जो मास का लॉस होता है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो ये हम लोग जब फ्यूजन और फिशन रिएक्शन देखते हैं तो इन सब रिएक्शंस में देखोगे कि जो प्रोडक्ट साइड का मास है दैट इज स्लाइटली लेस देन द रिएक्टेंट साइड का मास, और वो जो मास का जो लॉस हुआ है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर करके जो निकालते हैं. Examples of mass energy equivalence. So examples में पहला तो annihilation of matter. So when an electron and positron, है ना, combine with each other, they annihilate each other. The masses of electron and positron are converted into energy. This energy is released in the form of gamma rays, right? So each gamma photon has an energy of 0.51 mega electron volt. So here 2 gamma photons are emitted instead of 1 gamma photon to conserve the linear momentum. Now pair production, this process is reverse of annihilation of matter. In this case, when a photon having energy greater than 1.02 mega electron volt interacts with heavy nucleus, a pair of electron and a positron is generated. तो ये just इसका opposite है basically. Now nuclear reaction, in nuclear reaction mass is converted into energy. तो हम ये दोनों तो अभी हम लोग कोर्स में ज्यादा नहीं करना है, बट हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग करेंगे जब हम लोग 12th क्लास का सिलेबस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के. ना अभी जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी का फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पढ़ना है. सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो किसी भी बॉडी में अपने मोशन के वजह से जो एनर्जी है, स्पीड के वजह से जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. Expression for kinetic energy of a body of mass m moving with velocity v is given by half mv square, right? So this is the expression for it. Now expression of kinetic energy for constant force. So suppose a constant force F acts on a body of mass m as the body travels a distance s and increases its velocity from 0 to v. So we know that work done by the force is m into a into displacement, force into displacement. अब हमें पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. u अगर 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है. तो v स्क्वायर बाई s क्या हो गया? v स्क्वायर बाई 2a. इसको यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, ma इंटू वी स्क्वायर बाई 2a, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. सो वर्क डन appears as the kinetic energy of the body. So work done, so kinetic energy k is w, which is equal to half mv square. So this is the expression of kinetic energy for constant force. Now expression of kinetic energy for variable force, अगर force vary कर रहा होगा, so वहाँ पे work done dw is equal to f dot ds, that is f ds cos 0 degree, right? तो cos 0 1 होता है, theta is equal to 0 degree पे, तो work done dw is equal to f ds. f is equal to ma है, यहाँ replace कर लिया ma ds. a को dv by dt कर लेते हैं और हमें पता है ds by dt is equal to v होता है. तो m dv into ds by dt मतलब mv dv हो गया. अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट कर लेंगे m dw को mv dv, 0 से v इंटीग्रेट करेंगे, mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. सो विच इज half mv square. So work done is half mv square. So work done appears as the kinetic energy of the body. So kinetic energy is equal to half mv square. So दोनों फॉर्म में हम लोग इसको समझ सकते हैं, कैलकुलस के फॉर्म में भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं. Now important points
in vector form kinetic energy is written as half m v dot v, तो वो v dot v square ही हो जाता है. Kinetic energy is always positive, that is kinetic energy can never be negative as negative mass is not defined and v square is always positive. Kinetic energy half m v square होता है, m कभी negative हो नहीं सकता है और v square जो है हमेशा स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, v पे डिपेंडेंट और v क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट होता है. सो कंसिडर अ पर्सन ऑफ मास m सिटिंग इन अ बस मूविंग विद स्पीड v. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इन बस फ्रेम इज 0 बट हाफ एम वी स्क्वायर इन द फ्रेम ऑफ अर्थ. तो अगर बस के फ्रेम में, बस पे वो बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी बस के फ्रेम में 0 होगा. बट यही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो आदमी बस जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड, वही स्पीड उसका भी है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है एंड मोमेंटम क्या है, एम वी है. अब आप क्या करो ना, इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी होल स्क्वायर बाई 2m. एम वी मतलब होता है p, तो p स्क्वायर बाई 2m. सो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m. अब p अगर हम लोग को लिखना है, p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू k. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड momentum. Now, example 17, if you see, two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their momenta is. So, देखो, P is equal to root under 2mk. So, because kinetic energy same है, तो देखो P1 by P2 root under 2m1 by into k root under 2m2 into k. 2 कट गया, k कट गया, root under m1 by m2. So 1 by 4 का root under 1 by 2, that is 1:2. Option 3. क्लियर है बच्चों? एटीन्थ क्वेश्चन देखिए. The momentum of a body decreased by 20% when percentage decrease in its kinetic energy is. So अब हम लोग को ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, कि मोमेंटम में जो डिक्रीज है दैट इज 20%. सो अब देखो, ये हमारा जो परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय P initial into 100 is equal to 20. ठीक है, हम लोग को परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी P फाइनल रूट अंडर 2m into k फाइनल, ठीक है, माइनस ऑफ रूट अंडर 2m into k इनिशियल रूट अंडर 2m 2m into k इनिशियल into 100. ये हम लोग को निकालना है. रूट अंडर 2m ये हो गया, तो रूट अंडर k फाइनल माइनस रूट अंडर k इनिशियल डिवाइडेड बाय रूट अंडर k इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है इनटू 100. सो अब आप क्या करो कि यहाँ पे इसी में हम क्या कर सकते थे कि इसको हम लोग कर सकते थे 0. सो P फाइनल बाय P इनिशियल -1
is equal to 20 by 100 0.2. P final by P initial is equal to 1.2. डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, तो रूट अंडर 2m k final root under 2m k initial is 1.2. ठीक है, so k final is equal to 1.44 k initial. ठीक है, तो इन डिक्रीज जो हो रहा है, राइट, k, सॉरी ये उल्टा मैंने कर दिया ना, P initial minus P final by P initial, 1 minus P final by P initial, डिक्रीज हो रहा था ना, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू ज्यादा था, इज इक्वल टू 0.2. सो P फाइनल बाय P इनिशियल 1 माइनस 0.2 0.8 हो जाएगा. ठीक है, आई विल जस्ट सॉल्व इट अगेन, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक. यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है मोमेंटम ऑफ बॉडी डिक्रीज्ड, मतलब P initial minus P final divided by P initial is equal to 20%, मतलब 20 by 100 that is 0.2. इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो 1 माइनस पी एफ बाई पी आई, इसको पी आई को पी आई से डिवाइड किया तो 1 मिल गया. 1 माइनस पी एफ बाई पी आई इज 0.2. पी फाइनल बाय पी इनिशियल इज 1 माइनस 0.2 that is 0.8. root under 2mk final divided by root under 2mk initial is equal to 0.2. स्क्वायर दोनों तरफ कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा k final by k initial is equal to 64, 0.64. so percentage decrease, k final is equal to 0.64 k initial. तो अब देखो परसेंटेज डिक्रीज क्या है, के आई माइनस के एफ बाय के आई इंटू 100. इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. के आई जो हमारा वैल्यू, तो 1 माइनस ऑफ के एफ बाय के आई, 1 माइनस 0.64 इंटू 100, मतलब 0.36 इंटू 100, 36% से डिक्रीज कर जाएगा. सो 18th वाले का जो आंसर है 36% हो गया, ऑप्शन 3. This is percentage decrease in kinetic energy. Clear है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्योंकि 5 मिनट में तो खत्म नहीं होगा, बड़ा टॉपिक है. सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है बच्चों? ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम और कुछ पोटेंशियल एनर्जी फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कल. ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, आज के लिए इतना ही है ना.